Namaste. I, Sameera Shah, on behalf of Lamarck School of Art and Bhavyata Foundation, welcome all of you for the session today on National Handloom Day. We are going to be celebrating this day by saluting all our weavers and the handloom community at large who are being a very integral part of India and across the world, where they have been spreading creativeness through their art and craft cultures. Also, Swadeshi Sutra as a webinar series is brought to you today together by Lamarck School of Art and Bhavyata Foundation to celebrate this day, at the same time to get a lot and lot of knowledge and awareness to most of you on the subject of handlooms. We are going to be hearing from weavers, entrepreneurs and designers about the beauty of handlooms, the beauty of natural dyeing, block printing, designs, and eventually the consumer's psychology. When we are presenting this, we have in our panel today three different groups of speakers, where the first presentation is going to be done by the team of Khameer. Khameer is an organization based in Kutch, and they have been working at grassroots level in Kutch to revive various dying arts and crafts of that particular state or city, I would say. Also, they have been very closely working with all the various artisan and tribal communities to help them uplift and also work on their beautification of craft through design intervention and various other such activities. So we have with us today Mr. Paresh, who is going to be representing the Khameer organization. So Paresh Bhai Mangalia has been closely working for years now with this organization, has also been focusing on marketing of their products, designing and helping these artisans do the same. So he has got along with him today Ramji Bhai Hira Bhai from Sumrasar village, and also Parshottam Bhai Vankar, who is from the Bujodi village, who will be today together presenting this entire session for us. So I would like to now request Paresh Bhai to take over and give us a brief overview of everything that is happening in Kutch, and along with that also introduce us to a very, very beautiful product in the form of Kala cotton, which is mainly produced in Kutch. So I would now request Paresh Bhai to please take over, and all of you to please keep microphones and web cameras on mute, and so that it is not disturbing the participants. Thank you and welcome all of you once again for the session. Namaste. नमस्कार all of you. मैं परेश खमीर ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, और मैं कुछ बात शुरू करूँ उससे पहले समीरा जी, अगर हम देखें कि रामजी भाई जुड़ गए हैं हमारे साथ जी। राम राम गम्मा गड़ी। रामजी भाई अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। वो जुड़ गए हैं? क्योंकि मुझे स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहे वो। आप उनका हम थोड़ा वेट करेंगे, रामजी भाई जुड़ जाएं उसका, या हम कंटिन्यू करें? परेश भाई, आई वुड रिक्वेस्ट कि अब हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम लोग उनको ट्राई करते रहेंगे, पर आप प्लीज स्टार्ट करिए सेशन। जरूर जरूर, आप उनको दूसरे फोन से आप उनको फोन कीजिए जरूर। हाँ श्योर, थैंक यू। सो बेसिकली आज हैंडलूम डे है, तो सभी को शुभकामनाएं बहुत बहुत। हमारे भारत देश में अगर देखा जाए तो फार्मिंग के बाद कोई सेकंड ऑक्यूपेशन है तो वो है क्राफ्ट, और उस क्राफ्ट में बहुत सारे क्राफ्ट हैं, अलग अलग क्राफ्ट हैं। टेक्सटाइल क्राफ्ट हैं, नॉन टेक्सटाइल क्राफ्ट भी हैं, जो आप अभी कुछ स्कूल में पढ़ते होंगे, उसके बारे में जानकारी आपको होगी। सो आज गवर्नमेंट ने 7 अगस्त जो बताया है कि हैंडलूम डे के तौर पे हम बनाया जाए, तो हम उन वीवरों को ये समर्पित करते हैं इस दिन को, और उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा, और मेरे साथ जो 2 लोग मास्टर आर्टिसन जुड़े हुए हैं, जो यंग हैं,
बहुत सारे अलग अलग डिजाइनरों के साथ उन्होंने काम भी किया है, बहुत सारे इनोवेशन भी किए हैं, और उन्होंने अपने ट्रेडिशनली प्रोडक्ट लाइन को चेंज करके आज कंटेम्प्रेरी प्रोडक्ट में कैसे डेवलप किया है, वो खुद अपनी जर्नी भी बताएंगे। सो बेसिकली खमीर जो है वो टेक्सटाइल एंड नॉन टेक्सटाइल क्राफ्ट के साथ कच्छ में काम करता है। टेक्सटाइल क्राफ्ट में जैसे कि वीविंग, ब्लॉक प्रिंट, बाटिक, बांधनी, हार्ड मटेरियल जो क्राफ्ट है जिसे हम नॉन टेक्सटाइल क्राफ्ट भी बोलते हैं, जैसे कि सिल्वर ज्वेलरी है, पॉटरी है, वुड कार्विंग है, लैकर टर्न वुड है, कॉपर बेल है, ये सारे जो क्राफ्ट हैं वो नॉन टेक्सटाइल क्राफ्ट हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं रेगुलरली। तो खमीर का बिगिनिंग हुआ 2004-5 में। एक नीड खड़ी हुई थी कि एम्ब्रॉयडरी के साथ काम करने वाली बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन टेक्सटाइल एंड और जो क्राफ्ट हैं, जो क्राफ्ट टेक्निक प्रैक्टिसेस हैं, उनको आगे ले जाने के लिए, उसको जीवंत रखने के लिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो पर्टिकुलरली उनको सपोर्ट करे और उनकी नीड को फुलफिल करे। सो खमीर बेसिकली डेवलपमेंट का काम भी करता है और साथ में ही ट्रेड का काम भी करता है। तो जो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं आर्टिजन, उनको मार्केटेबल करना, वो हमारा काम है। कच्छ की बात करूं तो बहुत सारे अलग अलग टेक्निक है, क्राफ्ट टेक्निक है। उसमें से अगर हम बात करें तो वीविंग है, हैंडलूम वीविंग। अब परंपरा थी कि जो रबारी कम्युनिटी है या और भी जो कम्युनिटी है जो वूल का स्पिनिंग करती थी, कॉटन का हैंड स्पिनिंग करती थी, और जो वीवर है उनके लिए वो प्रोडक्ट डेवलप करते थे और उनको वो प्रोडक्ट वापस देते थे। तब के टाइम बार्टर सिस्टम था। तो बार्टर सिस्टम के टाइम क्या था, तो कोई वीवर प्रोडक्ट बना के देता था और उसके सामने उनको प्रोडक्ट के बदले उनको कुछ न कुछ चीजें दी जाती थी, चाहे धान हो या कुछ चीजें भी दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे बदलता गया, ट्रेंड बदलता गया, मशीन मेड यार्न भी आता गया। पहले पूरा ही हैंड स्पिनिंग कॉटन एंड हैंड स्पिनिंग वूल में काम होता था। आज धीरे धीरे मशीन स्पन धागा भी आ गया, सिंथेटिक धागा भी आ गया जिसे आप एक्रेलिक बोलते हो। तो इस तरह से कच्छ में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग रॉ मटेरियल के साथ काम करते हैं। थोड़ी वीविंग की बात करें तो 1987 या 19 के टाइम में एक्रेलिक बहुत आया। एक्रेलिक जो मैन मेड फाइबर है, हाँ सिंथेटिक फाइबर है, और उसको उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट डेवलप हुई। लेकिन जो ट्रेडिशनल डिजाइन है धाबड़ा की, उसको सॉल में कन्वर्ट किया वीवरों ने। ये पहला इनोवेशन था। और सॉल में कन्वर्ट करने के बाद वो प्रोडक्ट धीरे धीरे इतनी फेमस हुई कि आज में पूरी दुनिया से लोग आते हैं कच्छ की सॉल स्पेशल खरीदने के लिए। सो तब के बाद अभी अर्थक्वेक हुआ, 2001 के आसपास अर्थक्वेक हुआ है। तब के टाइम फिर भी ये सारी चीजें बहुत अच्छे से बिक रही थी। लेकिन उसके बाद एक ऐसी चीज थी कि एक जरूरी था कि रॉ मटेरियल चेंज किया जाए। अगर रॉ मटेरियल वही होगा तो उसका लाइफ इतना कम है, उसमें कंपटीशन भी ज्यादा हो सकती है। तब के टाइम में 2008-9 में खमीर ने काला कॉटन जो है, हमने देखा कि यहाँ पे कच्छ में काला कॉटन है, और काला कॉटन को किस तरह से हम वीवरों पे दिए और या वीवरों को वो उस चीज का यूज करें और उसमें से नई प्रोडक्ट कैसे बनाए, वो हम ट्राई कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे कि किस तरह से उसे हम आगे ले जाएं। मैं काला कॉटन की बात करूं तो मैं चाहूंगा कि एक पीपीटी हमने आपको दी हुई है, तो वो हम थोड़ा रन करें और मैं आपको काला कॉटन के बारे में बताऊं। कच्छ में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है सात्विक, जो नेचुरल जो सीड है उसको वो सीड बैंक की तरह काम करते हैं वो लोग, और वो फार्मरों के साथ रेगुलरली काम करते हैं। उन्होंने हमको कहा कि कच्छ में, ईस्ट पार्ट ऑफ कच्छ में देसी काला कॉटन है। अब इस देसी काला कॉटन रद्दियों के दाम में, जैसे कि बहुत कम दाम में वो बेचा जाता है और उसका यूज हो जाता है गद्दों में भरने के लिए। एक टाइम था कि ये शॉर्ट स्टेपल कॉटन को शॉर्ट स्टेपल कॉटन को हैंड स्पिनिंग किया जाता था और उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट डेवलप होता था, मोटा धागा बनता था बिकॉज ऑफ ये शॉर्ट स्टेपल है। सो उसी कॉटन को हमने सोचा कि क्यों ना हम
उसको रिवाइव करें, उसे आगे ले जाने के कुछ प्रयास करेंगे। हमने देखा कि फील्ड में बहुत सारा कॉटन है, फार्मर भी बहुत है जो इस कॉटन को ग्रो करने के लिए देसी पद्धति से उसका कॉटन ग्रो कर रहे हैं। तो हमने कॉटन कुछ परचेस किया और तब के टाइम हमने कुछ उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए कि ये धागा अगर बनेगा तो उसमें प्रोडक्ट कैसे बनेगी, ये इसका डाई हो सकता है या क्या, इसका नेचुरल डाई हो सकता है या क्या, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, या फिर ये वैल्यू चेन अगर हम क्रिएट करें, हम उसको जोड़ें उस चीज को एक धागे से दूसरे धागे को, तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको बेनिफिट मिले। सेकंड स्लाइड प्लीज। सो काला कॉटन वैल्यू चेन जो है, जैसे कि फार्मर है, स्पिनर है, जो डायर है एंड वीवर है, इससे 4 से 5 ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक उनका करते हैं और उसमें बहुत सारी आमदनी लोगों को मिल रही है। हाँ, हमारा अप्रोच था कि जो ये सॉफ्ट स्टेपल कॉटन है, इसको एक वैल्यू चेन की तरह क्रिएट किया जाए, जो स्पिनर, फार्मर, स्पिनर, जीनर एंड वीवर को भी उसमें से जो सारे के सारे जो है मार्जिनल आर्टिजन है, मार्जिनल लोग हैं, उनको इकोनॉमिकली क्यों ना उनको सपोर्ट अच्छे से हो सके। हमने एक चीज इसमें और भी की कि ये सॉफ्ट स्टेपल कॉटन को हमने प्रीमियम दाम लेके देके फार्मरों से हम खरीदते हैं। जो मार्केट के दाम होते हैं कॉटन के, उससे भी हम उनको प्रीमियम दाम देते हैं और वो कॉटन हम फार्मरों से खरीदते हैं, ताकि फार्मर जो को प्रेरणा मिले, ताकि वो हर साल यही देसी कॉटन है वो करता रहे। नेक्स्ट प्लीज। फार्मर, जिनर, वीवर की जो मैंने बात की, जैसे कि कॉटन से हमने कॉटन फूल की बात की, ये सॉफ्ट स्टेपल कॉटन है, इसका जो रेशा है 20 mm का है। सो उसको हमने ट्राई किया सबसे पहले अंबर चरखा के ऊपर। अंबर चरखा आप सब लोग जानते होंगे, उसमें से एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जब गांधी जी के टाइम में अंबर चरखा और पेटी चरखा को बनाया गया। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत टाइम पहले से थी, जब आदमी खुद स्पिनिंग करना शुरू किए तब से उस चरखे का तो शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन गांधी जी ने उसको एक नाम दिया, लोकल कॉटन से खादी का नाम देके उन्होंने उसको आगे लेके गए। सो हमारा जो एक एम है कि ऑर्गेनिकली इस कॉटन को हम आगे किस तरह से ले जाएं, जो स्टेक लॉट होल्डर हैं उनको किस तरह से उनके रोल जो है वो डिफाइन कर सके। और हम ये चाहते थे कि अलग अलग चीजों को लेके उसमें बहुत सारे इनोवेशन हो, डिजाइन हो, और हमने खमीर में अलग अलग फैसिलिटी भी की है ताकि लोग उसमें जुड़ सके और अपनी प्रोडक्ट को बेटर कर सके। नेक्स्ट प्लीज। सो काला कॉटन शुरू में जब हमने दिल्ली में एक एग्जीबिशन में हमने प्रेजेंट किया, तब के टाइम में सब आप देखेंगे कि लोगों को एक चीज उसमें से मिली जो वो लोग खादी में ढूंढ रहे थे, और एक नया रूप से वो खादी प्रेजेंट हुआ था, जिसमें विद द नेचुरल डाई था, नेचुरल डाई के साथ वो हैंड स्पिनिंग भी था, हैंड वोवन था। सो छोटे से छोटे डिजाइनर से लेके बड़े लोग, चेन स्टोर, बड़े डिजाइनर और आउट ऑफ इंडिया में बहुत सारे लोग थे जो लोग इस कॉटन को अप्रिसिएट करने लगे, और धीरे धीरे ये काला जो है वो पूरी दुनिया में फेमस हो गया। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, बेसिकली काला कॉटन है, ये सॉफ्ट स्टेपल कॉटन है। बहुत सारे लोग हम लोगों को पूछते हैं इसको काला क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो फार्मर कम्युनिटी है उसको काला बोलते हैं, सकाला बोलते हैं। सकाला दैट मीन्स के अच्छा, कम बारिश में भी ये ग्रो होता है, और इसका स्टिपल लेंथ बहुत कम है, लेकिन अपने आप में ये बहुत स्ट्रांग है। इसकी वजह से ये बहुत सारे ऐसे मटेरियल जब डेवलप होते हैं तब उसको ब्लेंड किया जाता है, लाइक ए जीन्स की डेनिम जब बनाते हैं तब उसको उसके साथ ब्लेंड किया जाता है। लॉन्ग स्टेपल कॉटन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सबसे ज्यादा उनको पानी चाहिए, उसको और सारे फर्टिलाइजर चाहिए, केमिकल चाहिए, तब जाके वो ग्रो होगा। और
हालांकि 1 एकड़ स्पेस में लॉन्ग स्टेपल ज्यादा ग्रो होता है, लेकिन उनकी कंपैरिजन में शॉर्ट स्टेपल जो है वो कम ग्रो होता है। लेकिन उससे फाइनर धागा तो बनता है लॉन्ग स्टेपल कॉटन का, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो है वो शॉर्ट स्टेपल कॉटन, काला कॉटन है। नेक्स्ट प्लीज। हमारे साथ अभी क्योंकि एक ये जर्नी ऐसा है कि पूरे 10 साल हमने इस जर्नी को स्टार्ट किया था, तो तब हमने अंबर चरखा देखा कि अंबर चरखे में ये धागा स्पिन हो सकता है या क्या। धीरे धीरे हम स्पिनर को भी ढूंढ रहे थे कि कच्छ में अगर इसका हैंड स्पिनिंग करने वाले कोई लोग हों, ताकि ये ऑर्गेनिक कॉटन को हम पूरा ही लोगों के सामने हाथ से कटा हुआ, हाथ से बुना हुआ, हाथ से डाई किया हुआ नेचुरल डाई के साथ हम लोगों के सामने प्रेजेंट करें। यहाँ पे कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं, जैसे कि 15 अंबर चरखा की बहनें हैं जो 3 विलेज में हैं जो स्पिनिंग का काम करते हैं। वैसे ही पेटी चरखा आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये गांधी जी ने ये किसान चरखा है। बेसिकली पेटी चरखा उससे थोड़ा छोटा होता है जो पैक हो जाता है, और उसको जब आप ट्रैवल कर रहे हो तब आप उसको आप साथ में ले जा सकते हो। तो हमने देखा कि अगर ये चीज हैंड स्पिनिंग हो सकती है तो क्यों ना मार्केट में हम ये पूरे प्रोडक्ट को हैंड स्पिनिंग की तरह रखें और आगे ले जाएं उसको। नेक्स्ट प्लीज। यस, सो क्योंकि फार्म में बहुत सारा कॉटन था, बहुत सारा फार्मिंग हो रहा है कॉटन, तो क्यों ना उसको हम मशीन पर अगर धागा पहले बनाए और हैंड स्पिनिंग भी पैरेलली बनाए, ताकि फील्ड में बहुत सारा कॉटन है और बहुत सारे फार्मर है, ज्यादा उसको इम्पेक्ट हो, इकोनॉमिकली वो ज्यादा अपना जो देसी कॉटन है वो मार्केट में बेच सके। इस वजह से हमने वो कॉटन ना के थोड़ा थोड़ा खरीद के हमने बल्क में खरीदा, और उसी ऑर्गेनिक कॉटन को हमने नेचुरल डाई के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट किया। तो आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, कच्छ में अलग अलग 4 नेचुरल डायर भी है, जो लोग कच्छ का ही लोकल कॉटन ग्रो होता है और यहाँ पे ही उसका डाइंग का काम होता है। नेक्स्ट। हम्म। बनाई भी है, उसको बेचने के लिए मार्केट भी नहीं था। लेकिन 2000 वीवर या 1800 से 2000 वीवर से सिर्फ 800 या 900 वीवर है जो अभी रेगुलरली काम कर रहे हैं। और ट्रेडिशन ये था कि वूल एंड कॉटन का वीविंग हुआ तब के टाइम में, और हैंड स्पिनिंग भी था। बीच में एक 25-30 साल ऐसे आए जिसमें मशीन स्पिन धागे से लोग प्रोडक्ट डेवलप करते थे और वो उसको मार्केट कर रहे थे। आज जो अर्बन मार्केट है, उस अर्बन मार्केट को फिर से वही हैंड स्पिनिंग, वही नेचुरल डाई चाहिए। तो जो हमारे वीवर हैं वो उसी को फिर से किस तरह से लोगों के सामने रख सकें, इसके लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं। और बहुत सारे वीवर हैं जो काला कॉटन मशीन स्पन भी डेवलप तो करते हैं, यार्न, और उसको हैंड वीविंग करते हैं, लेकिन हाथ से जिसकी कटाई हुई है उससे बहुत सारे वीवर हैं जो वीविंग करते हैं। नेक्स्ट। यहाँ कुछ फिगर रखे हुए हैं, जैसे कि 14 लाख से शुरुआत हुई थी, आज 2.5 करोड़ का। सिर्फ ये तो मैं खमीर की फिगर की बात कर रहा हूँ कि हमने जो टोटल सेल किया है, लेकिन ये 900 वीवर है ही नहीं। तो इस काला कॉटन से बहुत अच्छा इम्पेक्ट हुआ है, काम कर रहे हैं इसमें। अभी तो ये पीपीटी बना उससे तब का टाइम का है, अभी तो उसमें और भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, वीवर हैं खमीर के साथ जो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। ऐसे 60 फैमिली है। लेकिन बेसिकली अगर आप देखा जाए, जो काला कॉटन जो है वो लोगों तक पहुंचाने वाले कच्छ के
मोर देन 400 वीवर हैं जो सप्लाई कर रहे हैं इंडिया में और पूरी भारत इंडिया में और पूरे विदेश में भी। नेक्स्ट प्लीज। सो यहाँ पे जैसे कि वेजीज हैं जो आर्टिजन को दिए जाते हैं वो बहुत अच्छे हैं। इसकी वजह से हर मंथ जो आर्टिजन है 12 से 15,000 रुपए पर मंथ कमाता है और जो एंटरप्रेन्योर आर्टिजन है शायद वो उससे भी अच्छा कमाता होगा। ये जो लोग जो विविंग खुद कर रहे हैं किसी और के लिए उनका मैंने ये फिगर लिखा हुआ है यहाँ पे। सो नेक्स्ट प्लीज। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट की फोटो है विद द नेचुरल डाई। आप देखेंगे डेनिम का फैब्रिक डेवलप हुआ है उसमें जेंट्स गारमेंट भी बने हुए हैं इसमें कॉटन से कुछ छोटे बड़े डिजाइनरों ने साड़ी भी बहुत अच्छी डेवलप की है। और अभी आप फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या कोई और चीज के ऊपर भी आप देखोगे तो बहुत सारी काला कॉटन की साड़ीज फेमस हो चुकी हैं। भुजोड़ी साड़ीज के नाम से भी वो फेमस है और बहुत सारे आर्टिजन साड़ी बना रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। यस। सो प्रो जैसे लेबल हैं और भी बहुत सारे छोटे बड़े लेबल हैं जो लोग बहुत अच्छा काला कॉटन में प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं और काला का और कच्छ का नाम वो लोग रोशन कर रहे हैं। यहाँ पे एक फोटोग्राफ्स दिया गया है रबारी फैमिली का। जैसे कि ये सी फर्डर है। इस फोटो को ये वन टाइप ऑफ स्टोरी है। जब जब बारिश होती है तब ये अपने सीप को लेके एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल करते हैं और ये रबारी कम्युनिटी का जो पूरा लाइफ है सिर्फ उनके पशुधन को एक जगह से दूसरी जगह चारे के लिए ही वो ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अभी जैसे मैंने बहुत सारी बातें कही हैं काला कॉटन की लेकिन हालांकि ये काला कॉटन भी आया उससे पहले बहुत सारे वीवर है जिन्होंने काम किया है जिनके पिताजियों ने भी बहुत सारा काम किया है बहुत अच्छी डिजाइन डेवलप की है। कच्छ में जैसे कि सिर्फ भुजोड़ी विलेज की मैं बात करूं तो भुजोड़ी विलेज में 23 नेशनल अवार्ड विनर हैं जहां से परसोत्तम भाई अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सब लोगों में से एक हैं। हालांकि परसोत्तम भाई को कोई नेशनल अवार्ड नहीं मिला है लेकिन उनकी जो प्रोडक्ट है कोई नेशनल अवार्ड से कम की प्रोडक्ट नहीं है। इतनी अच्छी वो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। परसोत्तम भाई के बारे में मैं थोड़ा बहुत ये बताऊं कि उन्होंने अलग अलग डिजाइनरों के साथ उन्होंने काम भी किया है। परसोत्तम भाई ने कला रक्षा विद्यालय से डिजाइन को लेके 1 साल का उन्होंने कोर्स किया है और वहां से वो पास आउट हुए हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्ट में एक नवीनतम प्रोडक्ट लाए हैं ताकि लोगों को एक नया चीज मिले। अलग अलग चीजों को ब्लेंड किया है उन्होंने। तो अपने बारे में अपने जर्नी के बारे में और अपनी प्रोडक्ट के बारे में आई थिंक परसोत्तम भाई आप कुछ बताइए। नमस्ते और सब लोगों को हैंडलूम डे का अभिनंदन। सभी कारीगर को और सभी जो हैंडलूम को पहनते हैं उन लोगों को भी अभिनंदन हैंडलूम डे का। तो मैं एक ट्रेडिशनल वीवर हूँ और मैं भुजोड़ी से हूँ और मेरे दादाजी मेरे पिताजी और मेरे पिताजी से सुना है कि उनकी भी दादाजी और उन्होंने भी वीविंग का काम किया है। तो बेसिकली जब मेरे दादाजी और आगे जो हमारे बुजुर्ग काम करते थे तो वो सिर्फ एक रबारी फैमिली के लिए काम करते थे और वो सिर्फ धाबड़ा बनाते थे जो मैंने अपनी स्किन के पीछे लगाया है। तो मेरे पिताजी ने धाबड़ा भी बनाया है, रबारी लोगों के लिए भी काम किया है और उन्होंने एक नया यार्न और नई टेक्निक जिसको बोलते हैं जहाँ थ्रो शटल वीविंग होता था मेरे दादाजी करते थे, मेरे पिताजी ने भी किया। उसके बाद फटका लूम आया और उसमें भी मेरे पिताजी ने काम किया है और उन्होंने जो एक्रेलिक यार्न आया जो एक नया युग शुरू हुआ वीविंग में, जो एक प्रोडक्शन फास्ट हुआ, कलर लोगों को जो चाहिए
वो नए कलर, खूबसूरत कलर मिले। और एक जो ट्रेडिशनल में जो हैंडस्पन वुल का या कॉटन का कोई भी चीज है वो थोड़ी वजनदार होती थी, तो पर्टिकुलर लोकल के लिए बन रहा। तो वो एक जैसे जैसे समय बदलता गया और लूम में चेंजेस आते गए, मटेरियल में चेंजेस आते गए, वैसे वैसे चेंजेस आते गए। और एक्रेलिक आने के बाद तो काफी सारा प्रोडक्शन होने लगा और काफी लूम्स चलने लगी कच्छ में। तो इसकी वजह से फिर एक दौर भी हमें फेस करना पड़ा, जो पावर लूम ने हमारी शॉल की कॉपी करके, जो हमें 2-3 साल का जो थोड़ा स्लो हुआ था हमारा बिजनेस, और उसी स्लो को हमने हमारे जो कच्छ के कारीगर हैं उन्होंने सोचा कि इससे कैसे लड़ा जाए। तो एक चीज तो है कि आप कोई भी चीज मास में जाओगे, वो इतना जितना मास्क होगा उतना वो दूसरों के पास जाएगा, पर जितना अपने सोच समझ के और लिमिटेड प्रोडक्शन करेंगे तो वो अपने पास ही रहेगा। अगर दूसरे के हाथ में जा रहा है तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो मास्टर वीवर है, काफी लोग जो एग्जीबिशन में जाते थे, उन्होंने बाहर के जो एग्जीबिशन में और भी आर्टिजन आते थे, वो सिल्क, टसर, मलबरी, मरीनो वुल, वो देख के उन्होंने वो बारीक यान लेके आए। और हम लोगों ने जो हमारी डिजाइन्स हैं वो हम और भी और प्लेसमेंट चेंज किए, ताकि वो लोग ऐसे उनका दोबारा हमारे तक ना पहुंच पाए। और मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं पिछले 2012 से मैं वापस आया हूं इस काम में। इससे पहले मैं पढ़ाई खत्म करके ये एक दौर ऐसा था कि पूरा मार्केट चेंज होने के कारण मेरे पिताजी मास्टरी का काम करते थे, तो वो उनको उसमें इतना वेजेस नहीं मिलने के कारण वो साहब मुझे मना बोलते थे कि मैं तो तुम्हें वीविंग करने ही नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ मिलता ही नहीं है। पर ऐसा हुआ कि फिर मैं वहाँ से 12 साल एक एजर एम्ब्रॉयडरी डिजाइनर की तरह मैंने एक एनजीओ में काम किया, वुमेन आर्ट डिजाइन मार्केटिंग एजेंसी करके, वहाँ मैंने काम किया। उसके बाद फिर मैंने 2008 में मैंने डिजाइन क्लास, कला रक्षा से मैंने डिजाइन क्लास किया। तो वो वीविंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। और वीविंग को मैंने बचपन से देखा है, तो हमें सीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम देखते देखते ही सीख लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वापस अपने काम में आना है और इस काम को ही आगे बढ़ाना है, वो निश्चय कर लिया था। तो वो 2009 में मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे 2 साल और लग गए, क्योंकि आर्थिक कंडीशन और सैंपल डेवलपमेंट करने के लिए, और मार्केट तो जीरो था मेरे पास, मुझे एक जीरो से स्टार्ट करना था, तो मुझे वो 2 साल लग गए। और मैंने 1 साल सैम्पलिंग करके फिर 2012 से मैंने सैंपल मार्केट में डाला, और मुझे बहुत कठिनाई भी हुई। और उसमें फिर मैंने जो वहाँ पे जो डिजाइन क्लास में सीखा था उसको फिर मैंने अपने काम में, कलर कॉम्बिनेशन है, बेसिक डिजाइन है, फिर कॉन्सेप्ट है, प्रेरणा लेके काम करना, और मार्केट में कौन से जगह पे आप जा रहे हो तो वहाँ पे कैसा मटेरियल चलेगा, कैसे कलर कॉम्बिनेशन चलेंगे, वो सब सीख लिया था। अब मुझे उसमें उस काम में मुझे डालना था, तो वो तो मैंने काम में डाल लिया। पर उसमें भी एक लेवल आ गया कि मैंने चलो तो चला रहे हैं, प्रोडक्शन भी हो रहा है, पर उससे वो कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। फिर मैंने सोमैया कला विद्या से 2016-17 में मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया। अपने ही बिजनेस में कैसे हम आगे बढ़ पाए। पहले क्या होता था कि हम यार्न चाहिए 5 केजी और हम मंगा लेते थे 10 केजी, और उसमें भी चाहिए 4 केजी यूज होता था, तो 6 केजी कहीं कोने में पड़ा है, हमें पता नहीं है, और वो
काम भी नहीं आता है, फिर भी हम दोबारा 10 किलो मंगा लेते हैं। तो मटेरियल को कैसे कंट्रोल करना, ऑर्डर है उससे कितना पहले मंगाना, और एक चीज मार्केट के साथ जुड़े रहना, लोगों को नई नई चीज, नई डिजाइन दिखाना, और कस्टमर के साथ हर बार उनको कुछ ना कुछ डिजाइन में नया देना। तो वो सारी चीजें बहुत काम आई। और एक चीज वो भी थी कि आप प्लानिंग के साथ काम करो। तो वो मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद पूरा चेंज हो गया, क्योंकि हम लोग क्या करते थे कि हमें जो मजा आते थे कि हमें चलो इसका प्रोडक्शन करना है, इसका करना है, इसका करना है, वो कर देते थे। हम मार्केट टारगेट नहीं करते थे कि भाई हमें बॉम्बे में इतने एग्जीबिशन करने हैं, दिल्ली में इतने करने हैं, और ये सारे हमने टारगेट करके इतने ऑर्डर्स करने हैं, इतने लूम ये चलाने हैं। तो प्लानिंग से हमने काम किया, तो हमारा जो मटेरियल जो हम पूरे साल में जो प्रोडक्शन करके एंड ऑफ ईयर में हम देखते थे, तो यान का तो पेमेंट बाकी रह जाता था। तो वो हमने जब डिजाइन करके क्लास करके, जब डिजाइन और ये बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करके जब ये किया, तो फर्स्ट ईयर ही फेस आया कि अरे ये क्या हुआ, 30% ही यान का पेमेंट करना है, बाकी तो सब हमारा प्रोडक्शन पड़ा है और हमने अच्छा सामान भी बेचा है। तो वो सारी चीजें बहुत बेनिफिट हुआ। और डिजाइन क्लास शुरू होने के कारण मैं बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि हम जितने भी यंग आर्टिजन हैं, हम अगर 10 लोग भी अपना कलेक्शन रखेंगे, तो किसी का एक लोग का भी पीस सिमिलर नहीं लगेगा। हर एक कारीगर नया यंग यही सोचता है कि मैं अपनी ब्रांड बनाऊं। जैसे मेरी खुद की ब्रांड है थ्री थ्रेड्स। तो थ्री थ्रेड्स हम लोगों ने, जो हमारे 3 भाई हैं, हम तीनों मिलके इस ब्रांड को चलाते हैं। मेरे बड़े भैया हैं, वो डाइंग का और वीविंग का संभालते हैं, और मैं वीविंग भी करता हूँ, और मार्केटिंग का भी संभालता हूँ, और एग्जीबिशन भी करता हूँ, और एज अ डिजाइनर हूँ। तो छोटे भैया हैं जो उनका स्किल डिजाइन में बहुत है, तो वो मोटिव के साथ खेलना, नई डिजाइन बनाना, तो एक कॉम्बिनेशन क्रिएट होने के कारण हम बहुत ही हेल्प होती है। और हमारा वीविंग का काम ऐसा है कि पूरी जॉइंट फैमिली के साथ सपोर्ट हो तो ही आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे माता जी हैं, वो वर्क निकालती हैं, हमारे तीनों की वाइफ है, वो फिनिशिंग करती हैं, डाइंग में हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही मायने रखती हैं क्राफ्ट और हैंडलूम को टिकाने के लिए। और आगे कहूँगा तो भूकंप जब एक्रेलिक का जो कॉपी हुआ, उस टाइम बहुत सारी लूम खत्म हो गई थी। मैं अपनी भुजोड़ी की बात करूंगा, तो उस टाइम पे जहाँ 200, 150, 200 लूम चालू थी, वहां बैठ के 70 लूम ही हो गई। काफी लोग, कंपनियां आ गई कच्छ में। पहले कंपनियां नहीं थी, क्योंकि ये एक रूरल एरिया था। इसके कारण कंपनियां आने के कारण लोग नई नई कंपनियों में जाने लगे, लूम को छोड़ने लगे। पर अब पिछले 10-12 सालों के बाद ऐसे रोल मॉडल खड़े हुए हैं। सब लोग सोचते हैं कि मैं सामजी भाई की तरह मैं अपना नाम बनाऊं, मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊं, मैं दाया भाई की तरह यूएस जाऊं, अपना सामान बेचूं, मैं मुर्जी भाई की तरह हर एक एग्जीबिशन में जाऊं, मैं चमन भाई की तरह ऐसा भी अपना मैं लैक्मे फैशन में जाऊं। तो हर एक को एक रोल मॉडल मिलने के कारण नए जनरेशन आने के लिए उत्साहित है, और ये हमारे लिए क्राफ्ट के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। और आज की डेट में हमारी भुजोड़ी में 200-250 के आसपास लूम अभी चालू है। पुरुषोत्तम भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत डीपली आपने बहुत सारी चीजें बताई। हम आशा रखते हैं कि आप जिन जिन लोगों का नाम लिए वो सब आपके रोल मॉडल हैं, और आपका नाम भी कोई लेके आप भी एक रोल मॉडल बनो, और आप जो काम कर रहे हैं उसको प्रेरणा लेके और लोग भी व्यूअर भाई हैं जो आपके साथ ही काम करें। थैंक यू पुरुषोत्तम भाई। पुरुषोत्तम भाई, आप हैंडलूम डे के दिन आप ये हमारे साथ जो जुड़े हुए 85 कुछ लोग हैं, उनको आप कुछ थोड़े शब्दों में कुछ कहना चाहते हैं आज के दिन? जी परेश भाई, मैं आपको इसके बीच में एक और चीज बताना चाहूंगी कि पुरुषोत्तम भाई का बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन है जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है।
तो परसोत्तम भाई, मैं आपके कुछ डिजाइन भी ऑडियंस को जी दिखाना चाहूंगी, आप शायद उसके बारे में कुछ बताना चाहें। अगर कोई स्पेशल डिजाइन हो तो प्लीज आप बताइए। उसके बाद हम रामजी भाई महेश्वरी भी अब हमसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो इनके प्रेजेंटेशन के बाद हम जुड़े रामजी हुए भाई से बात करेंगे। पर पहले मैं परसोत्तम भाई के कुछ डिजाइन ऑडियंस को दिखाना चाहती हूँ। जी जरूर। जी नमस्ते मैम। ये मेरे छोटे भैया ने जब डिजाइन क्लास किया था तो उनका थीम था, ओशियन थीम था। तो उन्होंने दरिया के ऊपर काम किया था। तो एक फर्स्ट स्क्रीन दिखाएंगे, मैं बताऊंगा। हाँ, तो ये हमारा इसमें बॉडी में ऐसे दिखाया गया है कि नीला समुद्र का पानी में दूर से ऐसा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, और कहाँ कहीं पे सूरज की किरण गिर रही है, जहाँ वो चमक आ रही है। तो हमने वहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल मोटिव चौमुख है, जो कच्छ की आइडेंटिटी है, जो पहचान है, उसको हमने चमक दिखाने की कोशिश की है, जो वो पूरी हर साल और आने वाली पीढ़ियों तक चमकता रहे। और दूसरा स्क्रीन दिखाएं आप। हाँ, तो इसमें, हाँ, ये हमारा ट्रेडिशनल पंच का बोलते हैं, उसको हाफ करके और छोटा करके इसको फिश बनाया है। उसका पूरा फोटो नहीं है। और उसमें हमने क्या किया, छोटे छोटे और बनाए हैं हमने ऐसे। तो वो मछली जो है वो बुलबुले खाने जा रही है, पानी में बुलबुले के पीछे जा रही है। तो वो एक कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश की है। और ये मेरा पूरा एक अलग ही थीम है, मेरे खुद का बनाया हुआ है। तो ये एक पिंक और ब्लैक का थिंकिंग था मेरा, कि ऐसा हो कि पिंक है तो उसमें गुलाब है, तो गुलाब का जो पिंक है, जो उसकी डंडी होती है तो वो पूरी नीचे ग्रीन होती है, तो उस टाइप ग्रीन का जो आउटलाइन बॉर्डर में दिया है। और जो पिंकिश है तो वो पूरा लाइटली पिंक होता है। तो उसमें मैंने नया टसर, जो टसर फाइन टसर जो होता है, उसमें मैंने वेफ्ट में डाला है, और डिजाइन में सिर्फ प्लेन टसर ही डाला है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था इसमें। हेलो। हाँ, ये मेरा एक आउटरीच प्रोग्राम था, भागलकोट टू बुजोड़ी। जो हम लोग यहाँ से, मेरे साथ मेरे एक मित्र थे हमारे गांव से, ये नितेश भाई, वो मेरे साथ चले थे। और हम लोग सोमैया कला विद्या से वहाँ कारीगर टू कारीगर, जो हम लोग वहाँ सिखाने गए थे उनको डिज़ाइन के बारे में। तो वहाँ पे उनको जो डिज़ाइन है, कलर कॉम्बिनेशन है, थीम के ऊपर कैसे काम करना, उसके बाद हमें भी हमारा थीम लेना था। तो हमने लास्ट दिन हमें उसके बारे में, उनके बारे में बोलना था। तो आप थोड़ा लास्ट स्क्रीन दिखाएंगे तो मैं आपको समझाऊँ। तो मैंने उनको लास्ट दिन उनके साथ काम करने के बाद, भागलकोट के वीवर के साथ, तो मैंने उनको यही बोला कि आप लोग ऐसे ही मेहनत करेंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। तो वो ब्राइट शब्द मेरे दिमाग में बैठ गया। और मैंने बोला चलो ना, क्यों ना इनको ब्राइट कलर के साथ खेल के मैं अपना ट्रेडिशनल डाल के। और हमारा नेक्स्ट एग्जीबिशन भी चेन्नई में था, तो चेन्नई में भी ब्राइट कलर बहुत चलते हैं। तो वो उनको भी आइडिया के लिए कि आप किस मार्केट में जा रहे हो तो कौन से कलर लेने चाहिए, कैसा थीम होना चाहिए। तो उनके आइडिया के लिए मैंने ये होली कलेक्शन बनाया था, जिसमें मैंने पिंक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन लेके मल्टी बॉर्डर पे मैंने कलेक्शन बनाया था। हेलो। बहुत अच्छा आपने अपने कलेक्शन के बारे में बताया परसोत्तम भाई, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ रामजी भाई जुड़े हुए हैं, जो सुमरासर विलेज से हैं। और रामजी भाई का यूएसपी ये है कि जैसे मेघवाल कम्युनिटी में जो परसोत्तम भाई है वो मारवाड़ा कम्युनिटी से हैं, और रामजी भाई है वो महेश्वरी कम्युनिटी से हैं, जो एक्चुअली वीविंग का काम करते हैं, लेकिन
विविंग में ही मशरूम वीव जो है वो महेश्वरी कम्युनिटी आज की डेट में कर रही है। एक टाइम था कि बहुत सारे महेश्वरी कम्युनिटी में से लोग थे जो विविंग का काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे सब लोगों ने विविंग का काम छोड़ दिया। उसमें से कुछ गिने चुने लोग थे, उनमें से रामजी भाई और उनके पिताजी हैं जो स्पिनिंग भी का काम भी करते हैं और विविंग का काम भी करते हैं। रामजी भाई, आपके बारे में हम बात करेंगे। आप अपने बारे में बताइए, आपकी जर्नी, आप कैसे कब विविंग आपने शुरू किया, कैसे आप भी कला रक्षा से पास आउट हैं, तो आप अपना जरूर बताइए। रामजी भाई की एक यूएसपी में और बता दूं कि वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। रामजी भाई प्लीज आप अपना अनम्यूट कीजिए, फोन अनम्यूट कीजिए। आप तब जाके बात कर सकेंगे, क्योंकि हमें आप बात करेंगे हमें सुनाई नहीं देगा। हेलो हेलो, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, यस रामजी भाई। हेलो। हाँ नमस्ते सबको हैंडलूम डे का रामजी भाई, अब आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन और अब हमको आपके बारे में माहिती दे सकते हैं प्लीज। थैंक यू। मेरा नाम रामजी महेश्वरी, मैं सुमरा से मैं 3rd जनरेशन वीवर्स। पहले तो पूरे कारीगर वर्ग को और पूरे भारतवर्ष को मेरा हैंडलूम डे का खूब खूब शुभकामनाएं। ज़्यादातर पहले हमारे जो ट्रेडिशनल वीवर्स हूँ, और पहले क्या होता था हमारे खास करके आहिर और रबारी कम्युनिटी के लिए काम करते थे। तो मैं थोड़ा बहुत तो पहले से मेरे 2 भाइयों ने सब कुछ बता दिया है, फिर मैं एक शॉर्ट लिस्ट बोलता हूँ, शॉर्ट में ही बोलता हूँ। तो खास करके अपना यहाँ ट्रेडिशनल काम करते थे, दूसरा कि के लिए तो धीरे धीरे समय बढ़ता गया और थोड़ा कुछ तो समय के साथ में कुछ परिवर्तन पड़ा। साथ साथ हमारे जैसे बापूजी और दादाजी जैसे जो गुजरी के निगम होते थे उनके लिए भी काम करते थे, पूरा उनका ऑर्डर पे काम करते थे। तो समय के साथ साथ उनमें भी थोड़ा कुछ आ गया और एक एक्रिलिक का आया। तो के लुधियाना की एक्रिलिक वुलन शाल आ गई। तो उस टाइम में ब्लैंकेट्स के ऊपर जैसे खथा होता है हमारा यहाँ का देसी धाबड़ा, उनके ऊपर एक शाल कन्वर्ट हुई, तो जैसे कच्छी शाल। तो बाद में कच्छी शाल के ऊपर एक लुधियाना की मशीन शाल आ गई। तो खासकर 1990 के बाद बहुत मुश्किलें आने के लगी को मार्केट के अंदर। फिर हमारा पूरा जो बाजार था बिल्कुल ठप हो गया। तो बाद में ऊपर से एक 2000 में एक भूकंप आया। तो भूकंप के बाद हमारा काम बाजार पूरा ठप हो गया। तो एक आजीविका के टिकने के लिए हमने भी बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा। जैसे भूकंप के बाद 1-2 साल 3 साल तक हमने भी एक जॉब वर्क, लेबर वर्क, कहीं पे कड़िया काम या कुछ मजदूरी के लिए निकल पड़ते थे। लेकिन ये अपना उस काम में पैसे तो मिलता, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। तो फिर से हमने 2002 के बाद जो अपना काम था वो चालू कर दिया, जो वीविंग का। लेकिन उनमें भी एक ऐसा था कि बाजार तो थी नहीं, फिर भी हम चालू कर तो धीरे धीरे जैसे हम बोलते हैं सुमरा यहाँ ज़्यादातर बहुत सारे फॉरेनर आते रहते थे। जैसे एक हमारे पास में कला रक्षा है, तो हमको लगा कि भाई इतने सारे बायर्स आते, फॉरेनर आते, तो हम क्यों नहीं अपना काम इनको दिखाए। लेकिन वो देखते थे लेकिन लेते नहीं थे, क्योंकि हम वुलन शॉल में हम बहुत सारी मेहनत करते थे, लेकिन हमारा मार्केट नहीं मिल रहा था। इतनी मेहनत करते थे लेकिन कोई देखता भी नहीं था, क्योंकि वो एक्रेलिक थी। ये हमको भी पता नहीं था कि एक्रेलिक क्या चीज़ होती है। लेकिन समय आया कि हम कला रक्षा में 2008 में ज्वाइंट हुए डिजाइन कोर्स के लिए, तभी पता चला कि भाई मार्केट क्या है, लोगों को क्या पसंद है, क्या कलर है।
तो ये सब हमको 2009 में पूरा कोर्स के दरमियान सीखने को मिला कि भाई कलर क्या है, डिजाइन कॉन्सेप्ट क्या है, थीम, और लास्ट में हमारा फिनिशिंग एंड प्रेजेंटेशन। हम काम तो करते थे, लेकिन हम अगर अच्छा सा प्रेजेंटेशन भी नहीं कर पाते थे तो भी हमारा काम नहीं मतलब दिखा पाते थे, नहीं बिकता था। तो ये पूरा साल हमको डिजाइन कोर्स के अंदर सीखने को मिला। तो 2010 के बाद हमारा 2009-10 के बाद हमारा एक टर्निंग पॉइंट था, ताकि हम एक बाजार में आए। बाजार में आने के बाद एक हम हाईलाइट हुए, तो एक कारीगर से हम एक अच्छा सा डिजाइनर, मतलब एक आर्टिजन डिजाइनर हुए। तो ये तो हम काम करने लगे, एक अच्छा सा हमको एक प्लेटफॉर्म मिला। तो खास करके डिजाइन कोर्स के दरमियान हमको ये सीखने को मिला कि भाई लोगों की पसंद क्या है, लोग क्या मांगते हैं, क्या कपड़ा पहनते हैं, यहाँ तक कि मुंबई का कलर वो वहाँ क्या चलता रहा है। जैसे हम साउथ में जाएंगे तो वहाँ का कॉन्सेप्ट थीम अलग रहता है। तो वहाँ तक कि ज़्यादातर हमारा यहाँ टूरिस्ट एरिया है, जैसे हमारा ये खावड़ा जैसे वाइट डेजर्ट होता है, तो वो हमारा एक टूरिस्ट पॉइंट होता है। तो इसी वजह से हमारे सीजन में ज़्यादातर फॉरेनर बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उनका भी टेस्ट हमने जानने लगा, तो उनके टेस्ट के हिसाब से हमने अपना प्रोडक्ट बनाया। तो ज़्यादातर हमारा टेस्ट फॉरेनर एंड डोमेस्टिक मार्केट के हिसाब से हम बनाते हैं। फिर लगा कि भाई हम काम तो करते थे, फिर झूड़ी में हमने बोला कि भाई आप एक साल एक मैनेजमेंट कोर्स कर लो। तो हमने एक 2014 में 14-15 में हमने एक BMA कोर्स किया। तो BMA कोर्स के अंदर एक पूरे साल का हम मैनेजमेंट टाइम कैसे कर सकते हैं, मतलब टाइम मैनेजमेंट। पहले क्या होता था, हम एक हिसाब नहीं रखते थे, ज्यादातर बस ऐसे ही पूरा किसको माल दिया, कितना आया कितना गया, वो हमारा हिसाब नहीं रहता था। कितना पूरे साल का माल चाहिए, कितना स्टॉक रहा, कितना नहीं रहा, कितनी नुकसानी हुई, तो ये हम इतना मतलब एक हिसाब नहीं रखते थे टैली। तो वो मैनेजमेंट कोर्स के अंदर पूरे साल का एक मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिला कि भाई पूरे साल के अंदर हमको कितना प्रोडक्ट चाहिए, कब मतलब एक 365 दिन का पूरा टाइम टेबल बन जाता है कि हमारा सीजन रहता है ज़्यादातर अगस्त अक्टूबर के बाद हमारा मार्च तक सीजन रहता है। तो ये 4-6 महीना हमारा एक काम का सीजन होता है। तो इसके मार्च के बाद हमको क्या करना पड़ता है, तो वो हमको एक टाइम मैनेजमेंट में सीखने को मिला कि भाई मार्च के बाद हमारा एक प्रोडक्शन टाइम होता है। तो वो भी किस तरह के होता है कि पूरे साल का हम एनालिसिस करते हैं कि भाई पूरे साल में हमारा कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका, कैसे बिका। अगर नहीं कोई एक ऐसा प्रोडक्ट होता है कि क्यों नहीं बिका, तो उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। बाकी क्या होता है कि हम 60-40 के हिसाब से हम अपना काम करते हैं। जैसे हम 60-70% हमारा रेगुलर काम चालू रखते हैं और 30 या 20% हम कुछ सीजन के लिए नया बनाते हैं। तो हमारा एक प्रोग्राम रहता है, एक टाइम टेबल होता है। दूसरा कि 365 दिन के अंदर हमने पूरा एक काम का टाइम टेबल बना था कि इस टाइम में हम इतना प्रोडक्ट बनना है। वो भी ऐसा होता है कि भाई एग्जीबिशन के लिए कितना पीसेस बनाना, अपने घर के लिए जो अपना टूरिस्ट आते हैं तो वो घर पे के रखने के लिए भी कितना प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। दूसरा ये कि ऑर्डर बेस पे भी होता है कि भाई ऑर्डर आया है तो ऑर्डर को भी हमने किस तरह से काम में लगाना चाहिए, तो कितना कारीगर रखना चाहिए। तो इस तरह से हमने पूरा एनालिसिस टाइम टेबल पूरा बनाते रहते हैं। तो इस हिसाब से हमने ये पूरी जर्नी में हम डिज़ाइन कोर्स और मैनेजमेंट कोर्स में ये सीखने को मिला है। तो जैसे जैसे बाकी तो क्या है कि हमको अपने काम के अंदर अपना काम ही हमको सिखाता है पूरा। तो जैसे जैसे कोई डिज़ाइनर आता है तो हम उनसे भी हम बहुत सारे सीखते रहते हैं। कोई कस्टमर आता है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है उससे भी हम बहुत सारा सीखते हैं। तो ज़्यादातर कोई ऐसा ऑर्डर्स होता है तो ऑर्डर्स के लिए हम सैम्पलिंग के हिसाब से हम ज़्यादातर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज आप कुछ शब्दों में, अब हैंडलूम डे नरेश है भाई आज, आप म्यूट पे हैं, आपको भारत थोड़ा में अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को बोलने के लिए। और रामजी भाई अब हम आपकी कुछ डिजाइन्स दिखा रहे हैं ऑडियंस को, तो अगर आप अपने डिजाइन्स के बारे में कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। हाँ, ये हमारा टेक्सचर है। एक हमने ज़्यादातर 2009 में हमने एक टेक्सचर चालू किया। तो ज़्यादातर क्या होता है कि कई बार कस्टमर को बताते हैं, लेकिन एक हमने डिजाइन कोर्स सीखने के बाद एक
टेक्सचर, कोई अच्छा टेक्सचर कैसे दे सकते हैं, तो ये कपड़े के अंदर। हाँ जी राम जी भाई बताइए। हाँ, ये हमारा पूरा व्हाइट डेजर्ट का कॉन्सेप्ट है। जो ज़्यादातर कच्छ के अंदर एक व्हाइट डेजर्ट एक फेमस टूरिस्ट पॉइंट है। तो हमने देखा कि भाई व्हाइट डेजर्ट एक मगज मतलब लोगों के माइंड में एक सेट हो जाता है कि कच्छ में आने के लिए हमको व्हाइट डेजर्ट, तो ये हमने एक व्हाइट डेजर्ट का एक कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। ओके, परेश भाई, रामजी भाई और परशोत्तम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमसे इस टाइम, ऐसे टाइम में भी कच्छ से जुड़े। सुमरा सर भुजौड़ी और परेश भाई भी भुज में ही है, वहां से हमको उन्होंने ये पूरा वेबिनार का प्रस्तुति दिया और वहां के इतनी जो ब्यूटीफुल डिजाइन्स हैं उनके बारे में हमको बताया। अब हमारे कुछ क्वेश्चन हमारे बॉक्स में आए हुए हैं, तो मैं चाहूंगी कि अगर आप उनका कुछ उनके बारे में, हम 2-4 ही, शायद ज्यादा सवाल नहीं ले पाएंगे हम समय के कारण, लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर हम कुछ क्वेश्चंस ले पाए। ऑडियंस में कीर्तिका करके हैं जिन्होंने पहला प्रश्न पूछा है और जो जानना चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं इनको यूजुअली कितना समय लगता है भूनने के लिए। तो रामजी भाई और परशोत्तम भाई, मैं दोनों से चाहूंगी कि वो 1 बाय 1 हमको ये जवाब दें कि रामजी भाई, जब आप ये भूनते हैं आपको कितना समय लगता है ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंप्लीट करने में? जैसे तो हमारा क्या होता है कि ताना बाना सब जोड़ के एक पीस को हमको 2 से 3 दिन लग जाता है। तो ये हमारा एक, और दूसरा क्या होता है कि हमारा ये ताना पूरा 20 पीस का होता है, तो हम डिजाइन और कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से 2 दिन तो वैसे ही लग ही जाता है। तो हम कुल मिला के ताना सब करके 3 दिन का एक पीस बनता है। और बाकी क्या होता है डिजाइन के हिसाब से होता है, जैसे डिजाइन डिपेंडेंट डिजाइन, तो ज्यादा डिजाइन होता है। ओके, परशोत्तम भाई, आप भी हमको बताना चाहेंगे कि आपको कितना समय जाता है जब आप बनाते हैं एक पर्टिकुलर डिजाइन को? आई थिंक परशोत्तम भाई निकल गए हैं शायद। ओके, एक शॉर्ट में मैं बता दूं कि ये डिजाइन के ऊपर डिपेंडेंट है। कच्छ का जो वीविंग है वो एक्स्ट्रा वेफ्ट उसका मेन पहचान है। हाथ से जब उसका धागा कैलकुलेट करके उसके ऊपर एक पैटर्न क्रिएट होती है, दैट मीन इज एक्स्ट्रा वेफ्ट। अब उसमें डिजाइन और पैटर्न कितना है उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि कितना आप चाहते हो कि उस डिजाइन हो। ऐसा हो सकता है कि कोई स्टोल या दुपट्टा बन रहा है, वो कम से कम 2 दिन तो लगेंगे ही। एक डिजाइन छोटा सा थोड़ा बहुत आप डिजाइन बना रहे हो, लेकिन अब उसमें ज्यादा डिजाइन है, बहुत पीस में पूरा ही डिजाइन बना हुआ है, तो 8 से 15 दिन भी एक पीस में लग सकते हैं। कुछ साड़ियां हैं तो 5 से 6 दिन में भी हो जाती हैं कुछ साड़ी वीव करने के लिए। कुछ साड़ी 15 दिन में ही एक साड़ी वीव होके बनती है। सो एक्स्ट्रा वेफ्ट कच्छ का मेन पहचान है, जिसकी वजह से उसका डिजाइन कितना उसके ऊपर है। अगर उसको प्लेन वीव करना है तो एक स्टोन शायद वो शाम तक वीविंग कर दे 2 मीटर, लेकिन उसमें पैटर्न या डिजाइन बनाए तो उसके लिए शायद उनको 2-3 दिन लगते हैं। रामजी भाई, आपके लिए एक और सवाल है जो किंजल छेड़ा ने पूछा है, जो जानना चाहते हैं कि आपके वीडियो में हमने जो एक शॉल दिखाया जिसमें आपने पानी डाल के दिखाया था, उसके बारे में आप थोड़ा और बताएंगे लोगों को, और वो जानना चाहते हैं कि ये वाटर रेपेलेंट कैसे है? हाँ मैडम, ये हमारी एक बुजुर्ग को, जो जैसे पापा ने एक खत्था बनाया, जैसे हम हमारी कच्ची में बोलते हैं इसको खत्था, जो धाबड़ा बोलते हैं, तो इसको ब्लैंकेट्स हमारे इसकी खास पहचान होती है। ज्यादातर इसकी साची कोर यानी एक ट्विल स्वीव्स होता है, बॉर्डर का जो साची कोर होता है, जो 2 टाइप का एक धाबड़ा होता है, उसको हम स्टिच करते हैं, 2 पार्ट बना के इसको हम स्टिच करते हैं बीच में, यानी उसको हम सादा वाला धाबड़ा बोलते हैं, कच्ची धाबड़ा। तो वो हमारे 2 कम्युनिटी के लिए बनाते थे, एक रबारी एंड आहिर के लिए। जो पहले में क्या होता था, जो मालधारी लोग होते थे वो ज्यादातर जंगल में ही घूमते रहते थे, तो कहीं से भी वो एक धाबड़ा था, एक अपनी एक सेफ्टी थी, सिक्योरिटी थी। तो कहीं पे भी बारिश आ गई तो अगर इसके ऊपर जैसे ओढ़ लिया, पूरा कवर कर लिया, तो ज्यादातर जो सिप वूल होता था वो एक सिल्क की, ऑयली सिल्क की वूल होता था,
और अभी भी है। तो वो हमारा जो सिल्की ऑयली जो एकदम गट्ठा सा वीविंग किया होता है, तो उसके अंदर पानी भी बूंद भी नहीं पड़, जो उसको हम वाटर प्रूफ ब्लैंकेट्स बोलते हैं। तो ज्यादातर जो मालधारी लोग होते हैं वो जंगल में ही रहते हैं, तो वो उसको अगर ज्यादा बारिश आ गई तो उसको भूंगा भी बना के ओढ़ लेते, तो उसके ऊपर से एक बूंद भी पानी नहीं आती। तो वो एक खासियत है हमारे कच्छ के ब्लैंकेट्स की, खासियत है जो वाटर प्रूफ ब्लैंकेट्स यानी खत्था, तो उसके ऊपर एक बूंद भी अंदर नहीं आती है, तो उसकी एक खासियत है। इसी के लिए मैंने एक डेमो बताया है कि इसके अंदर पानी भी नहीं जाता है, तो मैंने वीडियो में भी एक बताया हुआ है। थैंक यू रामजी भाई। अभी जो सवाल है वो परसोत्तम भाई के लिए है, जो जानना चाहते हैं जैसे आपने मछली बताई, तो ऐसे अलग अलग जो इंस्पिरेशन है ये आप कैसे और कहाँ से लेते हैं? परसोत्तम भाई आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो हम आपसे आपको सुन पाएंगे। हेलो हाँ जी। हेलो। हाँ परसोत्तम जी, अब हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ जी, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। हाँ जी श्योर। तो जो मेरे पीछे जो धाबड़ा लगा हुआ है, जो हमारा ट्रेडिशनल धाबड़ा है। हेलो यस पुरुषोत्तम, आप बताइए। हाँ, तो ये हमारा ट्रेडिशनल धाबड़ा है। जो ट्रेडिशनल धाबड़े में से जो कन्वर्ट शावल हुई, उसके बाद मैंने उसमें मैंने एक स्टॉल बनाया था, जो ट्रेडिशनल धाबड़े की बॉर्डर भी आ रही है एक तरफ, और एक तरफ मैंने जिसमें बॉडी में सिर्फ वाइट ही होता था, तो मैंने आधे में मैंने ब्लैक किया है, आधे में वाइट, और एक तरफ मैंने इक्कत दे दिया है, नया लुक दिया है। तो मतलब, और उसमें क्या किया है कि ब्लैक यूज करके और 25% ब्लैक किया है और 25% वाइट किया है, तो मतलब वो डिजाइन का एक पार्ट बन गया है। तो हम कोई भी थीम या कुछ भी प्रेरणा लेते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह काम करना चाहते हैं। तो मैंने जो हमारा जो धाबड़े में से शॉल कन्वर्ट हुआ, जो ये शॉल करीब 40 सालों से चल रहा है। आप वीडियो मेरा देखिए, ये देखेंगे तो पता चलेगा। हेलो हेलो परेश भाई, हमारे ऑडियंस में दे आल्सो वांट टू नो कि कच्छ के वीवर्स, ये जो कोविड का जो 4 महीने करीबन हो चुके हैं, जब सब कुछ लॉकडाउन पीरियड में रहा है, तो क्या हैंडलूम सेक्टर पे तो ऑफ कोर्स बहुत ही फर्क पड़ा है, लेकिन व्हाट इज इट दैट यू नो ऑल द वीवर्स इन कच्छ हैव बीन डूइंग फॉर दीस 4 मंथ्स? मैं रामजी भाई और परसोत्तम भाई के लिए रिपीट करना चाहूंगी, तो कच्छ में ये जो 4 महीने आपके गुजरे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी या थोड़ा सा आप उसका एक रूप अगर सबको दिखाना चाहें या बताना चाहें, दैट इज व्हाट सब लोग जानना चाहते हैं आपसे। कोरोना महामारी तो पूरे भारत में और पूरे विश्व में चल रही है। तो हमने क्या किया कि हमने यही सोचा कि ऑर्डर्स तो थे और वो थोड़े कैंसिल हो गए, और थोड़े बहुत ऑर्डर थे तो यान की दिक्कत थी। तो उसके कारण हमने बैठे नहीं। हमने क्या डिसाइड किया कि कुछ ऐसी डिजाइन्स थी जो पिछले कई सालों से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो एग्जीबिशन के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ ऑर्डर का कर रहे हैं। कुछ ऐसी डिजाइन थी जो उसको हम दोबारा नहीं बना पा रहे थे, बाजार में अच्छी चली है पर उसका टाइम नहीं मिल रहा था। तो हमने वो सिलेक्ट किया, कुछ जो सिलेक्टेड डिजाइन है जो जिनको हमको टाइम नहीं मिल रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, या कुछ उसमें कुछ नयापन करना है, कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है, कलर रेंज करना है, डिजाइन में फेरफार करना है, तो उसको हमने डिजाइन सैम्पलिंग के तौर से उस समय को हमने उसमें कन्वर्ट किया है। हमारा जो डिजाइन हमारा सक्सेस है, जो नहीं बन पाया है, उस दौरान हमने बनाने की कोशिश की है हमने। रामजी भाई, आप कुछ बताना चाहोगे? आप लॉकडाउन के टाइम में बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से जो हमें परेशानी हुई है,
तो वो जो टाइम था और अभी जो है वो आप इस तरह से उसको देख रहे हैं? हाँ जी, अभी जो कोविड-19 जो कोरोना अभी चल रहा है, तो उससे हमको डर के बैठ के नहीं रहना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो भी माल अवेलेबल है, जो उसको हमने जो पुराना माल पड़ा है हमने उसको पूरा रिसाइकलिंग करके हमने पूरी सैंपलिंग अभी चल रही है, ताकि कई बार क्या होता है कि हमको सैंपल के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो हम अभी जो हमारा जो सैंपलिंग टाइम बहुत हमारा अच्छा चल रहा है, तो कई बार बोलते हैं कि यार सैंपल के लिए तो हमको 3-4 महीने तो वैसे ही चाहिए। तो रामजी भाई, शायद रामजी भाई प्रॉब्लम है कुछ नेटवर्क में उनके, लेकिन मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा जो आपने क्वेश्चन किया। बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारे आर्टिजनों को परेशानी बहुत हुई है, खास करके जैसे कि पुरुषोत्तम भाई ने कहा कि एक तो जिन लोगों के पास जितना रॉ मटेरियल था, क्योंकि जो मार्जिनल आर्टिजन है वो अपने पास खुद का स्टॉक करके रॉ मटेरियल नहीं रखते हैं, तो स्टॉक एक तो खत्म हो गया। जो जो ऐसे आर्टिजन थे जिनके पास ऑर्डर थे, उनके ऑर्डर बिल्कुल कैंसिल हो गए, लोगों ने मना कर दिया कि अभी हम ये खरीदेंगे नहीं। कुछ ऐसे जो समझते हैं आर्टिजन को, क्राफ्ट को, ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी कहा कि भाई अभी आपका मैं सामान नहीं खरीदूंगा, आपको मैं 50% एडवांस दे देता हूँ, लेकिन मुझको ये दिवाली के बाद सामान चाहिए। दैट मीन्स कि ये जो पूरा 1 साल है उन्होंने ऐसे ही उसको छोड़ दिया कि इसमें अभी हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, जो उनके पास है स्टॉक में वही सौ सामान वो बेचेंगे। लेकिन कोविड के दौरान हालांकि यहाँ पे जस्ट से ओपन अप हुआ सब कुछ, तब तक तो बिल्कुल कुछ था ही नहीं, यहाँ पे केसेस भी नहीं थे इतने। तो जो आर्टिजन से थे वो बहुत अच्छे से अपने घर पे बैठ के काम कर रहे थे और कोई उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा था, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि कोई ना कोई गेस्ट आते हैं या फिर इंटरनली कुछ शादी बैसाख महीना था, बहुत सारी शादियां होती हैं, तो काम बिल्कुल नहीं होता है। तो इस टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया, लेकिन मुश्किल आर्टिजनों को बहुत हुई, क्योंकि काम है लेकिन उसको खरीदने के लिए अभी कोई लोग नहीं है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है तो बताइए। मैं इसके बारे में बोलना चाहूंगा। अब ये क्वेश्चन है, तो अब प्रोडक्शन करें तो किसका करें, एग्जीबिशन का करें या नए सैंपल भी बनाए? तो अब मार्केट तो कब खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये कोई क्लियर नहीं है। अब वो सिचुएशन आ गई है, अब हम सोच में पड़ गए हैं क्या करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारे साथ वहां से कच्छ से जुड़कर ये पूरा वेबिनार प्रस्तुत किया, इतनी सारी जानकारी दी, राइट फ्रॉम काला कॉटन टू द डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स ऑफ वीविंग जो आप लोग कच्छ में कर रहे हैं इतनी खूबसूरती से। सो पुरुषोत्तम भाई और रामजी भाई, आपके डिजाइन्स डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल थे और बहुत ही इंस्पायरिंग भी रहे हैं काफी सारे लोगों के लिए। हमारे ऑडियंस में ज्यादा से ज्यादा लोग जो इस टेक्सटाइल में काम करने वाले या इससे जुड़े हुए लोग हैं, बट उसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स जो डिजाइनर्स बनने की आशा रखते हैं, उम्मीद से आपको ज्वाइन किए हैं। बट आई एम श्योर इस सेशन में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है आपसे। और ऑन बिहाफ ऑफ माय एंटायर टीम एट लमार्क स्कूल ऑफ आर्ट एंड भव्यता फाउंडेशन, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। एंड आप यहाँ पर आए इसके लिए हमारे शब्द बहुत ही कम है कि सिर्फ एक फोन कॉल पे आप लोगों ने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप आ गए यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ, और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन आप लोगों ने हमसे दिया। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन समय के थोड़ी सी दिक्कत है हमको, क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेशन भी लाइंड अप है। अब we have a next session beginning, so I would like to request that we have to conclude this conversation with the Khamir team. पूरा का पूरा जो आपने प्रेजेंटेशन दिया ये हमको यहीं पे कंक्लूड करना पड़ेगा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लेमार्क स्कूल ऑफ आर्ट, थैंक यू वेरी मच।